بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 8 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشرا سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 8 صفحہ نمبر 80 سے۔ اگلے روز وہ عائشہ کو پورے کالج میں ڈھونڈتی پھری لیکن اسے تلاش نہیں کر پائی۔ صدف نے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ وہ کالج آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ وہ ہر اس جگہ گئی جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کے 2 ضروری نوعیت کے ٹیسٹ تھے، اس لیے وہ کلاس سے جا کر اسے نہیں دیکھ سکی۔ فارغ پیریڈ میں عائشہ اس سے انگلش میں مدد لیا کرتی تھی۔ اس روز وہ اس کام کے لیے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید آج کوئی بھی فری پیریڈ نہ ہو، لیکن کم از کم وقفے کے دوران تو آنا چاہیے تھا اسے۔ چھٹی کے وقت اس کے ذہن میں مسجد کا خیال آیا تو وہ مسجد کے سامنے پہنچ گئی۔ نماز پڑھ کر نکلنے والی لڑکیوں میں عائشہ بھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکی اور واپس اندر چلی گئی۔ جاسیہ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ اس بات میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عائشہ اسے دیکھ کر اندر گئی تھی۔ کچھ دیر کھڑی اور اس کے نکلنے کی منتظر رہی، لیکن وہ باہر نکلی ہی نہیں۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ مسجد کے اندر جا کر اس گریز کی وجہ دریافت کرے، مگر اس ارادے پر عمل نہیں کر سکی۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ ہاسٹل کی طرف جانے والی روڈ پر چل پڑی تھی۔ وہ سب کے ساتھ رات کا کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ اجی اس کے بنائے ہوئے پالک گوشت کی تعریف کر رہا تھا جب صدف نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ کر دوپہر والی بات چھیڑ دی تھی۔ امی، آج بڑا تماشا ہوا ہے، بازار میں ہمیں میری مل گئی تھی، وہ جو اس دن ہمارے گھر بھی آئی تھی، عائشہ کی سہیلی ہے۔ تائی جان نے یوں سر ہلایا جیسے میری کے متعلق یاد آ گیا ہو۔ عائشہ کی یہ تمہید کسی خطرے کا پیش خیمہ لگی تھی۔ اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ ہمیں لے کر چلی گئی ریسٹورینٹ کھانا کھلانے کے لیے۔ اس کے کزن کا ریسٹورینٹ ہے ادھر اوکاڑا شہر میں۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جہاں 2 سہیلیوں کی مرضی ایک ہو وہاں میری رائے کی کیا اہمیت تھی۔ ریسٹورینٹ میں میری کا کزن اونل اور اس کے دوست مل گئے۔ لو جی، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اتنی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں گے۔ امیر لوگ ہیں، مرد عورتیں اس طرح گھل مل کر بیٹھنے کو برا نہیں سمجھتے۔ عائشہ کو کئی بار اٹھنے کا اشارہ کیا، پر یہ تو ایسی باتوں میں لگی تھی کہ نہ جانے اس کا دھیان ہی نہیں۔ اس کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ صدف بات کو کوئی اور رنگ دے رہی تھی۔ تائی جان نے بڑا سا لقمہ منہ میں گھسیڑتے ہوئے اسے کڑے تیور سے گھورا۔ اجی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی چگلی کھا رہا تھا۔ تایا جی البتہ پہلے کی طرح سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھی رہی میری جان ہوا ہوتی رہی۔ یوں اجنبی آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھایا پیا جاتا تھا بھلا؟ صدف منہ کے ایسے زاویے بنا رہی تھی جیسے کوئی بہت مزیدار بات سنا رہی ہو۔ عائشہ کی انگلیاں مفلوج ہو کر سینے میں دھری تھی۔ اس نے کمزور آواز میں وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ میں نے منع کیا تھا جی، پر صدف بولی تھوڑی دیر بیٹھ کر تائی جان نے آئی برو پر گرا مارتے ہوئے اسے خاموش کر دیا۔ پوری بات تو سن لینے دو۔ تماشا تو تب ہوا امی جب اونل نے بھاگ کر عائشہ کو روکنے کی کوشش کی۔ صدف نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا۔ ہم جانے لگے تو وہ منتیں کرتا ہوا پیچھے آیا کہ کچھ دیر اور بیٹھیں، شورما کھا کے جائیے گا، نئی ڈش ہے، نیا ذائقہ ہے، فلاں فلاں کہتے کہتے فرش پر اس کا پاؤں ایسا پھسلا کہ ایک بیری کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے ایک کہکہ لگایا۔ اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تھا، لیکن کوئی دھیان دیے بغیر اس نے بات جاری رکھی۔ سارے لوگ ہنسنے لگے۔ بڑی بے عزتی ہوئی بیچارے کی، منہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔
आंखों में पानी नजर उठाकर किसी को देख नहीं रहा था। सच्ची देखने वाली शक्ल थी उसकी। बड़ा मुहज्जिब बनकर लंबी चौड़ी बातें कर रहा था। कितनी देर तो फर्श से उठा ही नहीं। अजय दस्तरखान से हाथ पहुंचकर इसे झटके से उठा और चक हटाकर सहन में चला गया। वैसे इसके साथ हुआ बहुत अच्छा। जब कोई नहीं रुकना चाहता तो जबरदस्ती रोकने की जरूरत ही क्या है। सदफ ने कुछ जताने वाली अंदाज में इसे मुखातिब किया और खाली बर्तन समेटने लगी। वो सदमे से गुंग इसे देखती रही। ताया जान झुके हुए सर के साथ बोले, आइंदा मैं ना सुनूं कि तुम किसी सहेली के साथ कहीं बाहर गई हो। मैंने रोका था सदफ को। ठीक है, तुमने रोका होगा, लेकिन आइंदा एहतियात करना, वो तंबी लहजे में कहकर उठ गए। बेबसी के शदीद एहसास में घर कर उसे रोना आ रहा था। बेबसी के शदीद एहसास में घिर कर उसे रोना आ रहा था। सदफ ने वाकया इस पैराए में बयान किया था कि कोशिश के बावजूद वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकती थी। वो उठकर बाहर जाने लगी तो रोटी का आखिरी लुकमा हलक में उतरकर ताई जान इसकी गोशमाली के लिए मैदान में उतरी। ये क्या हरकत की है तुमने? तुम्हारे ताया का कोई जानने वाला तुम्हें गैर मर्दों के साथ खाना खाते देख लेता तो क्या खाक इज्जत रह जाती हमारी? खुद तो तुम चली ही गई, सदफ को क्यों साथ ले गई? ये कंगनपुर की रीत होगी मर्दों के साथ खुल डुल कर मिलने की। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। खुद को सारा काबू में रखो। शरीफ बेटियों की तरह नहीं रहा जाता तो बताओ मुझे, मैं तुम्हें अभी वापस भिजवा दूं। तुम्हारी जिम्मेदारी उठाकर बड़ी गलती की है। पता नहीं और क्या क्या लक्षण दिखाओगी। एक बात, मेरी बात सुन लो, मुझसे भी तो पूछ ले। इसकी आंखों में जमा होने वाला गर्म पानी छलकने को बेताब था। आंखें तो इतनी जल्दी भर लेती है कि फिल्म वालियां भी पीछे रह जाती हैं। खुदा जाने इतने मक्कर कहाँ से सीखे हैं। ये जिम्मेदारी हमें बड़ी महंगी पड़ेगी। कोई चांद चढ़ाए बगैर तुम नहीं रुकोगी। इन्होंने हवा में यूं हाथ चलाया जैसे इसके मुंह पर तमाचे मार रही हों। वो चुपचाप सहन में आ गई। नीम की डालियों की ओर से जाफरानी चांद झांक रहा था। इसकी फीकी चांदनी दबे पांव फर्श पर उतर रही थी। नीम का पेड़ रह रह कर झुरी झुरी लेता था। अजी वॉश बेसन के पास चौकी पर सर के बालों में उंगलियां फिसलाए बैठा था। वो उल्टे कदमों अंदर स्टूल में चली आई और बड़ी पेटी के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। न जाने उसे एक ही अंदाज में वहां बैठने कितनी देर गुजर गई होगी कि कदमों की हाथ सुनकर तेजी से खड़ी हो गई। अजी के सफेद चेहरे पर एक निगाह डालकर इसने आंखें फर्श पर मरकूज कर दी थी। यहाँ क्यों बैठी है? तुझे मत की बात बताई जाए तो रूठ कर बैठ जाती है, रोने लगती है। क्यों गई थी तू? और तुझे जरा हया ना आई गैर मर्दों के साथ गप्पे लगाते हुए? इसका जब्त जवाब दे गया। आंसू आंखों से झलक कर रुखसार को भिगोने लगे। तुम भी यही समझते हो अजी मेरा कसूर है? मेरा कोई कसूर नहीं। तो किसका कसूर है? खबरदार आंसू एक ना निकले तेरी आंखों से, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। तमाशा बना रखा है, हर वक्त रोती रहती है। आंसुओं को रोकने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। इसकी थोड़ी सीने से जा लगी। जानते हैं, वो ओनिल कैंट का बदमाश तरीन लड़का है, एक नंबर का लफंगा है। और जिस लड़की की तो सहेली बनी फिरती है, इसका आगा पीछा किसी को मालूम नहीं। लोग कहते हैं भगा कर लाया है कहीं से, आवारा लड़की है, रातें गुजारती है इसके साथ। इस पर तोहमत न लगाओ। वो अपने अंकल आंटी के घर जाकर रहती है। रहने दे, तोहमत ना लगाओ। कौन सा अंकल और किधर की आंटी? ओनिल अकेला रहता है, इसी के पास आती है। हमें तो आज तक किसी अंकल आंटी का पता नहीं चल सका। अल्लाह जाने क्या चक्कर चला रखा है। रोना तो बंद कर दे। वो झुल्ला कर बोला। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मुझे इस बात पर गुस्सा आ गया कि मेरे लाए हुए समोसे उठाकर तू फकीरों को पकड़ा देती है। मुझसे इतनी नफरत, और इस सुअर के साथ होटलों में खाना खाती है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ आयशा, जो दिल में हो कह देता हूँ। तुझ पर एतबार है मुझे, तेरी अकल पर एतबार नहीं। इस लड़की से मिलना छोड़ दे, किसी मुसीबत में डाल जाएगी तू। मेरी आज की कही बात पल्ले बांध ले, वो लड़की सही नहीं है। तू पल्ले दर्जे
कि बेवकूफ है, दुनिया बड़ी चालाक है, आंखों के सामने बंदा गायब कर देते हैं लोग और पता भी नहीं चलने देते। कल से मिलना बंद कर दे, साफ बता दे इसे कि तू नहीं मिल सकती और ना ही कहीं बाहर जा सकती है इसके साथ। अपनी पढ़ाई से मतलब रख, बस सीधी कॉलेज जा और सीधी घर वापस आ। किसी से मेल मुलाकात रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ आई मेरी बात? वो सर झुकाए खामोशी खड़ी रही। ओ बोल भी, हर वक्त रोती न रहा कर, ज्यादा रोने से आंखें खराब हो जाती हैं। इन आंखों को तूने खराब किया तो मैं बरी करूंगा, इनसे दुश्मनी ना किया कर। बोल भी कुछ, जो कहा है समझ में आ गया ना? इसने बज़ाख़शफ़ की मानिंद सर हिला दिया। मेरी के मुताल्लिक ऐसी बात तस्लीम करने इसका दिल इनकार करता था। बिलाशुबा वो आजाद ख्याल लड़की थी, लेकिन सुलझे हुए आदत और अतवार की मालिक थी। कभी कोई लग़वियात इसकी ज़बान से नहीं सुनी थी। इस दिन के बाद आयशा मोहतात हो गई। कॉलेज में इसे मेरी का बड़ा सहारा था। इसे इंग्लिश में दुश्वारी पेश आती थी। जरा जो मेरी से कह देती तो वो चाहे कितनी भी मसरूफ होती, वक्त निकालकर इसे पढ़ाने में बैठ जाती। कॉलेज में फारिग औकात वो तकरीबन 7 गुजारती थी। अब कहीं इत्तेफाकन भी मेरी से सामना हो जाता तो वो रास्ता बदल लेती। मेरी की आंखों से तासुफ की झलक देखकर वो दिल गिरफ्तगी के एहसास में घिर जाती थी। इसने भी आयशा के रवैये की तब्दीली को भांप लिया था और हद्दुल वसी इसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं करती थी। अगर बात करना नागुज़िर हो तो इसका अंदाज निहायत रस्मी सा होता। गुफ्तगू चंद जुमलों से आगे बढ़ने नहीं पाती। आयशा अपने रवैये पर नादिम थी, लेकिन एक अनजाना खौफ दामन घेर था। मेरी से लाताल्लुकी के दिनों में इस पर इंकिशाफ हुआ कि कॉलेज की बाहर लड़कियां इसे नापसंदीदगी की निगाह से देखती थी, और वैसे ही अफसाने कॉलेज की 4 दीवारियों में भी गर्दिश करते थे, जैसे वो अजी की ज़बान से सुन चुकी थी। इसके बावजूद वो मेरी से बदजन नहीं थी और इन किस्सों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत तस्वुर करती थी। अलबत्ता मेरी से मेल मुलाकात न रखने में इसी आफत थी, लिहाजा वो खुद पर जबर करके आफियत तलाश कर रही थी। यहाँ इसका दिल वैसे भी नहीं लगता था। अब मेरी से कतई ताल्लुक के बाद वक्त बिताना और भी दुश्वार हो गया था। दिन सुस्त रवि से रेंगने थे, किसी सोसुमार की मानिंद जमीन में पांव गड़े जमे रहते। कभी मामूली सा आगे सरक जाते, यूं जैसे कोई दुश्वार गुजार पहाड़ी पटगंडी पर चढ़ते हुए थोड़ा सा फासला तय करके हाँफने लगे। उस रोज बसों की हड़ताल थी। इसके इम्तहानात शुरू हो चुके थे। कॉलेज जाए बिना चारा भी नहीं था, सो वो सदफ के साथ फौजी गाड़ी में सवार हो गई। इससे कबल भी वो 2-3 दिन लगातार इसी गाड़ी में जा चुकी थी, क्योंकि प्राइवेट बस से सफर करने में देर हो जाने का एहतमाल होता था, और इन दिनों वो वक्त पर पहुंचने की मुतमईन थी। चुभी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले भी गाड़ी का ड्राइवर इसे तंबिया कर चुका था कि बगैर बस पास के सफर करने की इजाजत नहीं है। वो सिमटी हुई और किसी कदर छुप कर बैठी थी। जब सीढ़ी को सेट के नीचे रखते हुए आदमी की नजर उस पर जम गई। आप फिर आ गई हो, पहले भी मना किया था ना आपको, उसने तलख्तगी से कहा। पेपर्स हो रहे हैं और आज बसों की हड़ताल है, आज जाने की इजाजत दे दें, कल से नहीं जाऊंगी। सदफ जल्दी से बोली थी। नहीं बीबी नहीं, हमें इजाजत है, ऊपर से कार्ड रखे बगैर कोई लड़की इस गाड़ी में नहीं जा सकती। पहले इसका कार्ड बनवाओ। चलो बीबी नीचे उतरो, जाओ चलो। वो दोबारा सीढ़ियों को जमीन पर टिकाने लगा। आयशा ने मुतज़्ज़बन नजरों से सदफ को देखा। अंकल बड़ी ज्यादती है ये, एक दिन जाने से क्या कयामत आ जाएगी। आखिरी बार जाने दें, कल अगर आए तो बेशक उतार दीजिएगा। बहस ना करो बीबी, मैंने बताया ना हमें इजाजत नहीं है, हम बिल्कुल नहीं ले जा सकते। इसकी जगह किसी मेजर की बहन होती तो कर्नल ब्रिगेड की बेटी होती तो मैं देखती कैसे उतारते आप। आपको जरा भी एहसास नहीं, आप इसका पेपर रह जाएगा। बस तो कोई है नहीं, आज पैदल चलकर जाएंगी क्या? इस बार सदफ की बात का इसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन इस खामोशी का मतलब ये नहीं था कि आयशा को सफर करने की इजाजत मिल गई होती। इसके चेहरे की करफ्तगी हुंजूर बरकरार थी और वो सीढ़ी के डंडे पर हाथ धरे यूं झुका हुआ था जैसे आयशा के उतरने का मुंतजिर हो, ताकि सीढ़ी को वापस खींच सके।
सबकी और परेशानी के मिले जुले एहसासात ने आयशा के आसाब को बुरी तरह नरके में ले लिया था। सदफ ने होंठ भींचते हुए कंधे उचका दिए थे, जो इस बात का इशारा था कि वो उतर जाए। वो सर झुकाए हुई उठी और नीचे उतर आई। इसके सिवा वो कर भी क्या सकती थी। सुरमई सड़क वीरान पड़ी थी। इक्का दुक्का साइकिल सवार, मोटरसाइकिल वाले और पैदल चलने वाले फैली हुई बेरौनकी को शिकस्त देने में नाकाम थे। इसे अपने हलक में नमक का खारा जायका महसूस हुआ था। कुछ देर वो यूं ही बेमकसद सड़क के किनारे खड़ी रही थी। वापसी के लिए मुड़ते हुए इसने एक कार को अपने करीब रुकते देखा था। यहाँ क्यों खड़ी हो आयशा? मेरी की आवाज पर इसके उठते कदम थम गए थे। ड्राइविंग सीट पर ओनिल था। आज तो पहिए जाम हड़ताल है ना, इसने कहा तो ओनिल ने खफफ सा सर हिला दिया। तुम किसका इंतजार कर रही हो? बस तो आज नहीं मिलेगी, चलो तुम हमारे साथ चलाओ। ओनिल ने बाजू लंबा करके पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया था। इसके पैर सख्ती से जमीन के साथ जुड़ गए। अजी शायद थोड़ी देर में इधर से गुजरेगा, मैं इसके साथ चली जाऊंगी, पता नहीं कब गुजरेगा वो। कहाँ तुम्हारा पेपर भी है ना आज? वक्त कम रह गया है, चलो बैठ जाओ। मैं तुम्हें अगवा तो नहीं करके ले जाऊंगी, ना ही मुझे कोई चोट की बीमारी है जिससे तुम खौफजदा हो। मेरी के लेजे में मख्फी चुभन इससे छिपी नहीं रह सकी थी। ओनिल ने इस सारे अरसे में एक बार भी इसकी तरफ नहीं देखा था। शायद अब तक रेस्टोरेंट वाला वाकया इसके जहन से महू नहीं हुआ था। मैं चली जाऊंगी, आप जाइए, अजी मुझे छोड़ आएगा। इसका अंदाज भी कतियत पैदा करने की कोशिश थी। मेरी ने ताज्जुब से इसे देखा। आयशा, मुझे पता है अजी तुम्हें छोड़ने नहीं जाएगा। यकीनन आर्मी की गाड़ी से तुम्हें उतार दिया गया होगा। मेरी समझ में नहीं आता हमारे साथ जाने में तुम क्यों कतरा रही हो? बैठ जाओ, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं भी जिद पर उतर आई हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगी, बैठो अंदर। इसका इसरार इतना बढ़ा कि मजबूरन आयशा को बैठना पड़ा। इसके बैठते ही ओनिल नीचे उतरा और घूमकर मेरी की तरफ आते हुए बोला, आज तुम ड्राइव करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा, ना ही तुम्हें हिदायत दूंगा। अपनी मर्जी से गाड़ी चलाओ, सड़क खाली पड़ी है, आज तुम्हारा राज होगा। वो आयशा के साथ पिछले नशिस्त पर बैठ गया तो मेरी गर्दन मोड़कर पुरजोश लहजे में बोली, मैं अकेली ड्राइव करूंगी? हाँ, तुम अकेली, इसके बगैर तुम में एतमाद नहीं आ सकता। आयशा ने मुस्तरिब होकर पहलू बदला था। मैं आगे बैठ जाती हूँ आपके साथ। नहीं प्लीज, तुम वहीं बैठी रहो, मुझे घबराहट होगी। इस तरह इसने ड्राइविंग सीट पर खिसक कर स्टीयरिंग संभाल लिया। कार एक झटके से सड़क पर फिसलने लगी थी। मेरी का चेहरा जोश से तमतमाने लगा था। कुछ देर बाद आयशा को महसूस हुआ कि ओनिल की नजरें इस पर मुर्तकिज थीं। वो सिमट कर कोने में दुबक गई थी। मेरी पहली बार आजादी से ड्राइविंग करने पर इतनी खुशी थी कि इसे किसी और चीज का होश ही ना था। झुलसती नजरों के इर्तिकाज से घबराकर इसने दुपट्टे का पल्लू पेशानी से नीचे खींच लिया था। दिल में वो दुआ मांग रही थी कि सफर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अपनी गलती पर शदीद पछतावा हो रहा था। मान इसने ओनिल के हाथ को किसी सांप की मानिंद सीट पर रेंगते देखा। इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। वो सिमट कर खिड़की के साथ लग गई। हाथ की हरकत नहीं थमी थी, वो मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर कुलबुलाती उंगलियों ने इसके हाथ को छू लिया था। इसका वजूद जकड़ों की जद में आ गया। न जाने इसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि इसने ओनिल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। गाड़ी रुक गई थी। इसके दिल की धड़कन भी शायद चंद सानियों के लिए थमी थी। मेरी हैरत की ज्यादती से मस्क चेहरा लिए पीछे देख रही थी। ओनिल ने चिल्लाते हुए हाथ बढ़ाकर डोर लॉक खींचा और इसे बाहर धकेल दिया। यू ब्लडी बीच, तुम्हारी इतनी जुर्रत, मैं देख लूंगा तुम्हें। यू मुगलाजात बकता हुआ वो नीचे उतरा और मेरी को हाथ से परे धकेल कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी एक हिचकोला खाकर आगे बढ़ी थी। वो सरतापा कांप रही थी। लरजीदा टांगे इसके जिस्म का बोझ उठाने से कासिर थीं। घर की तरफ जाते हुए वो यूं लड़खड़ा रही थी जैसे इसके कदमों तले ठोस जमीन के बजाय पानी का फर्श बिछा हो। ओनिल की बात सुनकर इसकी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। प्लीज ओनिल, तुम इतना गुस्सा मत करो, लानत भेजो सारी बात पर। मुझे तुम पर एतमाद है। आयशा का दिमाग खराब है, नॉर्मल नहीं है वो। मेरा भी दिमाग खराब है, इसने मेरी इंसल्ट की है, मैं किसी तरह भूल नहीं सकता। आई स्वेयर, मेरा हाथ गलती से टच हो गया था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो मुझसे पूछ सकती थी कि ऐसा क्यों हुआ, मगर मैं इसे माफ नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं कर सकती ओनिल,
وہ اب مجھ سے نہیں ملے گی. وہ تو پہلے ہی مجھ سے نہیں ملتی تھی. اس واقعے کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا ہر قیمت پر. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. تمہیں اسے لانا ہی ہوگا کسی بھی طرح. اس نے سر اٹھا کر فلم ٹرے کے شعلے روح پھولوں اور ان میں سے جھانکتی ہوئی آسمان کی نیلاہٹ کو دیکھا. یہ امتزاج ایسا تھا جیسے کسی کبودی کھٹلالی میں سونا پگھل رہا ہو. ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. میں اس ایک بات کے سوا نہ کوئی بات سنوں گا اور نہ کروں گا. مجھے اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں. تم اسے کب لاؤ گی؟ میں پریگننٹ ہوں انل، اور میں اس بات کو مزید چھپا نہیں سکتی. تم فوراً اس شادی کو ڈکلیئر کر دو، ورنہ کچھ دنوں میں میرا جسم خود لوگوں کی بتا دے گا. کالج میں میرے لیے پہلے ہی بہت حقارت پائی جاتی ہے. لڑکیاں مجھے بد کردار اور آوارہ سمجھتی ہیں. اس کا خیال تھا اونل یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑے گا، پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دے گا، لیکن اس کی توقع کے برعکس وہ ساکت بیٹھا رہا. اس کے چہرے کے تنے ہوئے عضلات میں ذرا سی بھی لچک پیدا نہیں ہوئی. جب وہ بولا تو اس کی آواز کی کرختگی کچھ اور بڑھ چکی تھی. تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا. اسے کب تک لا رہی ہو تم؟ اسے دھچکا لگا تھا. اونل اس قدر بیگانگی کیسے برت سکتا ہے؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو. صدمے سے اس کا دماغ معاف ہونے لگا. تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں صرف ایک بار اسے اپنے رحم و کرم پر دیکھنا چاہتا ہوں. اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے تھپڑ مار کر اس نے کتنی سنگین غلطی کی ہے. میں اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. میں اسے مجبور کروں گی. وہ تم سے معافی مانگ لے گی. میں ایک بات کو اتنی بار دہرانے کا عادی نہیں ہوں. تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، اور بالکل ویسے ہی جیسے میں چاہتا ہوں. اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہ ہو. نارنجی پھولوں میں دھوپ نے آگ لگائی تھی. پھولوں کے جھرمٹ جو شعلوں کی حدت سے سلگ رہے تھے یکلک بھڑک اٹھے. فلم ٹرے کی شاخوں پر شعلے جلنے لگے. یہ نہ کرو اونل، پلیز یہ نہ کرو. وہ مر جائے گی. اس کے بعد میں کیا کہوں گی اس سے؟ خدا کے لیے اسے معاف کر دو. مجھے پتا ہے تم نے کوئی غلطی نہیں کی. میں تمہیں بے قصور سمجھتی ہوں. پھر تم کس لیے ایسا کر رہے ہو؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب. جو بھی تمہاری مرضی ہے بتا دو، لیکن ایک لفظ میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہنا. نہ جانے کتنی دیر وہ سر جھکائے سبز گھاس کو گھورتی رہی. بوجھل ساعتیں کسی اپاہج کی طرح گھسٹ رہی تھیں. پھر منو وزنی گردن بمشکل سیدھی کرتے ہوئے وہ بولی، نہیں. اونل کین چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے یہ جملہ اتنی آسانی سے ادا کیا تھا جیسے کوئی کہہ دے میں سگریٹ نوشی ترک کر دوں گا. اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا. وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے شاید. وہ کہہ رہا ہے چلو تمہیں ہاسٹل چھوڑاؤں. اس نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے بیٹھی سی آواز میں پوچھا، تم نے ابھی کیا کہا ہے اونل؟ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اس نے صفاقی سے دہرایا. کبودی کھٹلالی میں پگھلتا ہوا سونا کناروں سے ابل کر اس کے وجود سے برسنے لگا. دیکھتی آنکھ کے چھینٹے پڑنے سے آبلے پڑنے لگے. تم نے اپنے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں؟ ان پر تمہارا کیا نام لکھا ہے؟ تم جتنے بھی ہاتھ پاؤں مار لو، ثابت نہیں کر سکتے کہ تم مسلم ہو. ہماری نگاہ کا ثبوت بھی تمہارے پاس نہیں. تم جس قدر مرضی چیخو چلاؤ، اسے ناجائز ہی سمجھا جائے گا. لوگ تمہیں تھپڑ ماریں گے، پتھر ماریں گے، تم پر تھوکیں گے. اپنی ماں کے پاس بھی تم نہیں جا سکتی. ذرا سوچو تم کہاں کھڑی ہو. میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا ہو جائے گی تم؟ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اچھی طرح سوچ لو. اسے دیکھتے الاؤ نے جھونک کر وہ جلا گیا تھا. وہ کھلے ہوئے منہ کے ساتھ دم سادے بیٹھی تھی. فلم ٹرے کی شاخوں سے جدا ہوتے انگارے ایک ایک کر کے اس پر گرتے چلے جا رہے تھے. عائشہ، صرف تمہاری خاطر میں نے اونل سے ملنا چھوڑ دیا ہے. مجھ پر یقین رکھو، صرف تمہاری خاطر. مجھے بہت دکھ ہوا. وہ قسمیں کھا رہا تھا.
बड़ी कोशिश की इसने यकीन दिलाने की कि जो हुआ दानिस्तगी में हुआ, मगर मैं नहीं मानी। मुझे इसकी बातें फरेब लगी। अंकल ने भी इसका घर में आना बंद कर दिया है। अपनी पूरी जिंदगी में इसे झूठ बोलने में इतनी दिक्कत कभी पेश नहीं आई थी। हलक में कांटों की बाढ़ थी जो लफ्जों को रोक रही थी। वो कहता था, मुझे इसके पास ले जाओ, मैं माफी मांग लूंगा। बहुत शर्मसार था। सब ने इसे लानत मलामत की। अंकल तो इसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं है। आयशा ने घास पर बिखरी हुई अपनी किताबें इकट्ठी की और खामोशी से इन्हें थैले में मुंतकिल करने लगी। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मेरे साथ इस तरह का रवैया ना अपनाओ। कई रातों से मैं सो नहीं पाई हूँ। इसकी घटिया हरकत की सजा मुझे ना दो। मैं खुद को मुजरिम समझती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आयशा उठकर जाने लगी तो इसने मिन्नत भरे अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे बताओ मैंने क्या किया है? तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत देखकर मैं जमीन पर गड़ जाऊंगी। काश मैंने इस दिन तुम्हें लिफ्ट ना दी होती। मेरी वजह से तुम पेपर में एब्सेंट हो गई। पर प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन इतना अफसोस होगा तुम्हें क्लास टेस्ट में हिस्ट्री में तुम्हारे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे। सारे साल की मेहनत रह जाएगी। आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। आयशा ने इसकी तरफ देखे बिना नरमी से इसका हाथ हटाया और रुख फेर कर चली गई। वो घास की पत्तियां नोचने लगी। ककरोंदे की लंबी पत्तियों वाले जर्द फूलों में मंडलाते भंवरों के बेचैन परों की थरथराहट इसके कानों में घुस रही थी। गुल मखमल के पौधों से लहू नोच रहा था। इसने सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए इसके तवील सांस लेने की कोशिश की। इसका हलक ऐसी बंजर जमीन की मानिंद खुश्क हो रहा था जैसे सदियों से बारिश की एक बूंद नसीब ना हुई हो। इससे पहले भी आयशा ने इससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी खामोशी नहीं टूट सकी थी। इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। इसका दिमाग सन्ना रहा था। बंद में अजमलाहल रेंगता था। जब वो इसे बोलने पर आमादा ना कर सकी थी तो कहीं साथ ले जाने में क्यों कर कामयाब हो सकती थी। उंगलियां होठों में दबा कर वो नाखून कतरने लगी थी। ओनिल ने मुझे छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, इस पर क्या होगा से आगे सोच कर तपता सेहरा था, जिसमें तादेर भटकने के बाद वो पैरों में आंवलों की कसक और आंखों में रेत की चुभन के सिवा कुछ नहीं पा सकती थी। 4th ईयर की क्लासेस शुरू हो गई थी। इसके फोन पर अब्बा को हिस्ट्री के पेपर के बारे में मुताला कर दिया था। इन्हें बताए हुए जब्त के बावजूद इसे रोना आ गया था। वो इसे तसल्ली देते हुए दिल मजबूत रखने की हिदायत करते रहे, जो वो किसी भी मुलाकात में दोहराने नहीं भूलती थी। वो कहना चाहती थी कि वो इस हुनर से आशना है। इस दिल को मजबूत रखना नहीं आता, लेकिन लफ्ज तालुं से चिमट कर रह गए थे। वो कुछ भी ना कह सकी। कॉलेज में कई बार मेरी ने इससे माफी मांगी थी। इसका रास्ता रोककर मिन्नतें की थी। इसे मेरी से कोई गिला नहीं था, लेकिन इससे बात करने को भी जी नहीं मानता था। इस रोज वो बस स्टॉप पर खड़ी थी जब सवारी का इंतजार करने वालों के हुजूम में मेरी दिखाई दी। इसे हैरत हुई, इतनी चिलचिलाती धूप में वो कहाँ क्या कर रही है। शायद इसने ओनिल से मिलना वाकई छोड़ दिया था और बस पर कैंट जा रही थी, या फिर गाड़ी खराब होगी। सड़क पर रुकने वाली बस की तरफ लपकते हुजूम ने इसकी सोचों को मुंतशिर कर दिया था। खासी जिद्दोजहद के बाद वो बस में सवार हुई। इसे बिल्कुल खबर न हुई मेरी इस बस पर बैठी थी या अब तक बस स्टॉप पर खड़ी थी। इसने किसी खाली नशिस्त की तलाश में नजरें घुमाई, लेकिन मायूसी का सामना हुआ। एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग ठुसे हुए थे। ये कोई नई बात नहीं थी। अक्सर औकात इसे खड़े होकर सफर करना पड़ता था। इंसानों के हुजूम ने गर्मी और घुटन को दो चंद कर दिया था। दुपट्टे के पल्लू से पेशानी पर चमकती पसीने की बूंदें साफ करते हुए वो इस छोटे लड़के की तरफ मुतवज्जा हुई जो कंधे से पानी का कूलर लटकाए लोगों में से जगह बनाता इसके पास आकर रुक गया था और शायद इससे कुछ कह रहा था। वो अपने ख्यालों में मगन थी। पहली बार इसके अल्फाज समाज से टकराए तो कोई मफहूम पैदा ना कर सके। वो इस्तेफामिया नजरों से इसे देखने लगी थी। पीछे बाजी आपको बुला रही हैं। इनकी तबीयत खराब है, इनके साथ कोई नहीं, आप इनकी बात सुन लें। लड़के ने ऊंची आवाज में दोबारा बताया था। इसने उलझन ज़दा नजरों से इस सिम देखा जिधर इस लड़के ने इशारा किया था और फिर कुछ हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। 3 औरतें और 2 मर्दों के घेरे में बस के फर्श पर उकड़ू बैठी हुई मेरी थी। इसकी रंगत सूरजमुखी जैसी सर्द हो रही थी और आंखें पानी तले डूब रही थी। एक औरत ने इसकी कलाई थामकर इसे दाएं बाएं लड़कते
लौटने से रोक लिया था। आयशा, मेरी तबीयत सख्त खराब हो गई है। इस पर नजरें पड़ते ही मेरी ने कर कहा, क्या हुआ जी? इसे इस हाल में देखकर वो सख्त तशवीश में मुब्तला हो गई। आगे बढ़कर इसे सहारा देकर उठाया और एक स्टूडेंट लड़के की मिन्नत करके सीट खाली करवाई। यहाँ बैठ जाइए आराम से। वो खुद इसके साथ खड़ी हो गई। मेरे के कुलमिलाए हुए चेहरे पर पसीने की बूंद फिसल रही थी। मैंने कैंटीन से बर्गर लेकर खाया था। जायका बहुत अजीब सा था। भूख बहुत लग रही थी, बस खा लिया। शायद इसमें कोई चीज बासी थी। लगता है मुझे फूड पॉइजन हो गई है। मैदे में सख्त जलन हो रही है। वो रुहासा हो रही थी। यहाँ हमारा पार्ट 8 इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफ़ा नंबर 90 से समाअत फरमाइए। शुक्रिया।